Hello, my dear students, how are you? I welcome all of you in my online class under the direction of district administration. It is lockdown everywhere. The whole India is under lockdown. So we should follow the rules and regulations of lockdown. I appeal you to follow the order and advices given by the district administration to fight against novel coronavirus or COVID-19. You should not go out from your houses without any necessary need. You should stay in your homes. Stay home, stay safe. You should use mask in the situation of going out of your homes. You should follow the rules of social distance. Keep safe distance for your security from COVID-19. You should wash frequently your hands, especially before touching your mouth, nose, and eyes. You should download Arogya Setu app and install it in your mobile phones. This app is made for our health security. It is very beneficial for us to fight against coronavirus or COVID-19. And if you feel symptoms like high fever, shortness of breath, and cough, then you should contact to your nearest government hospital for your checkup. After following these rules and regulations and steps, we can fight against coronavirus successfully and get a victory over it. I want to thank our DM Madam Mrs. Selva Kumari J, our CDO Sir Mr. Alok Yadav, our DIOS Sir Mr. Gajendra Kumar for providing us their help, cooperation and security. Our DIOS Sir Mr. Gajendra Kumar is working very hard for the success of online classes in district Muzaffarnagar. He is always ready to help all the teachers and all the students in their difficulty. Now let's start our today's topic. Our today's topic is short answer type questions from the lesson number 1, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. In your board exams, a short answer type question is asked and total 4 marks are fixed to write the answer of this short answer type question. So it is very important to you to write the answer of this short answer type question for getting good and meritorious marks in your board exam. Now you can see the short answer type questions and their answers on your screens. The first question is, who was William C. Douglas? William C. Douglas कौन थे? Where was he going? वे कहाँ जा रहे थे? From New Delhi, नई दिल्ली से. विलियम सी डगलस कौन थे? वह नई दिल्ली से कहाँ जा रहे थे? आंसर, William C. Douglas was a judge of the Supreme Court. William C. Douglas थे a judge, एक न्यायाधीश of the Supreme Court, उच्चतम न्यायालय के, of अमेरिका, अमेरिका के. विलियम सी डगलस अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश थे. ही वॉज गोइंग, वे जा रहे थे. टू रानीखेत, रानीखेत तक. फ्रॉम न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से. वह न्यू दिल्ली से रानीखेत तक जा रहे थे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द राइटर डू? लेखक ने क्या किया?
टू गेट ए फील, महसूस करने के लिए, ऑफ द पल्स, नब्ज को या नाड़ी को, ऑफ द नेशन, राष्ट्र की। लेखक ने राष्ट्र की नाड़ी को महसूस करने के लिए क्या किया? या लेखक ने राष्ट्र के लोगों की भावनाओं को जानने के लिए क्या किया? आंसर, एट एवरी स्टेशन, हर स्टेशन पर। द राइटर वॉक्ड, लेखक चहलकदमी करता था या टहलता था। द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर। एंड टॉक टू द पीपल, और लोगों से बातचीत करता था। हर स्टेशन पर लेखक प्लेटफॉर्म पर टहलता था और लोगों से बातचीत करता था। He talked, वह बातचीत करता था। अबाउट द वर्ल्ड अफेयर्स, संसारिक मामलों के बारे में। एंड इम्पोर्टेंट न्यूज, और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। ऑफ द डे, दिन की। वह संसारिक मामलों के बारे में तथा दिन की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बातचीत करता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु वर दोज चिल्ड्रन, वे बच्चे कौन थे? सेलिंग बास्केट्स, टोकरियां बेचते हुए। टोकरियां बेचते हुए वे बच्चे कौन थे? आंसर, दोज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, टोकरियां बेचते हुए वे बच्चे वर थे। रेफ्यूजी चिल्ड्रन, शरणार्थी बच्चे, टोकरियां बेचते हुए वे बच्चे शरणार्थी बच्चे थे। दे वर द सन्स, वे बेटे थे। एंड डॉटर्स, और बेटियां थीं। ऑफ दोज रेफ्यूजी पीपल, उन शरणार्थी लोगों के। हु हैड कम, जो आए थे। टू इंडिया, भारत। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, बंटवारे के समय। वे उन शरणार्थी लोगों के बेटे और बेटियां थीं जो बंटवारे के समय भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 4, हु वर सेलिंग द बास्केट्स एंड वाई। हु वर सेलिंग, कौन बेच रहे थे? द बास्केट्स, टोकरियां। एंड वाई, और क्यों? कौन टोकरियां बेच रहे थे और क्यों? और व्हाट वर द रेफ्यूजी चिल्ड्रन सेलिंग, शरणार्थी बच्चे क्या बेच रहे थे? वाई वर दे डूइंग सो, वे ऐसा क्यों कर रहे थे? आंसर, द रेफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग, शरणार्थी बच्चे बेच रहे थे। द बास्केट्स, टोकरियां, शरणार्थी बच्चे टोकरियां बेच रहे थे। दे वर डूइंग सो, वे ऐसा कर रहे थे। टू अर्न देयर लिवलीहुड, टू अर्न, कमाने के लिए। देयर लिवलीहुड, अपनी जीविका, वे अपनी जीविका कमाने के लिए ऐसा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया। वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव, लाखों लोगों ने क्यों छोड़ दिया पाकिस्तान? लाखों लोगों ने पाकिस्तान क्यों छोड़ दिया? फॉर इंडिया, भारत के लिए। लाखों लोगों ने भारत के लिए पाकिस्तान क्यों छोड़ दिया? आंसर, ड्यू टू द फियर, डर के कारण। ऑफ रिलीजियस फेनाटिसिज्म, धार्मिक उन्माद के। धार्मिक उन्माद के डर के कारण। मिलियंस ऑफ पीपल्स, लाखों लोगों ने। लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़ दिया। ड्यूरिंग पार्टीशन, बंटवारे के समय। धार्मिक कट्टरता या धार्मिक उन्माद के डर के कारण लाखों लोगों ने बंटवारे के दौरान पाकिस्तान को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द रेफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड। डिसेंड का मतलब टूट पड़ना। शरणार्थी बच्चे क्यों टूट पड़े? लाइक लोकस्ट, टिड्डियों के समान। ऑन द ऑथर, लेखक पर। शरणार्थी बच्चे लेखक पर टिड्डियों के समान क्यों टूट पड़े? आंसर,
द रेफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंडेड, शरणार्थी बच्चे टूट पड़े। लाइक लोकस्ट, टिड्डियों के समान। ऑन द ऑथर, लेखक पर। बिकॉज, क्योंकि। दे थॉट, वे सोचते थे। दैट द रिच अमेरिकन, की धनी अमरीकी। वुड बाई, खरीद लेगा। देयर आर्टिकल्स, उनका सामान। शरणार्थी बच्चे लेखक पर टिड्डियों के समान टूट पड़े क्योंकि वे समझते थे कि धनी अमरीकी उनके आर्टिकल्स या उनका सामान खरीद लेगा। शरणार्थी बच्चे लेखक पर टिड्डियों के समान टूट पड़े क्योंकि वे सोचते थे कि धनी अमरीकी उनके सामान को खरीद लेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हु अट्रैक्टेड, किसने आकर्षित किया। द राइटर मोस्ट, लेखक को सर्वाधिक। लेखक को सर्वाधिक किसने आकर्षित किया। इन द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के समूह में। एंड हाउ, और कैसे। बच्चों के समूह में लेखक को सर्वाधिक किसने आकर्षित किया और कैसे। और विच वेंडर, कौन सा विक्रेता। अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच। ड्रू, ड्रा की सेकंड फॉर्म ड्रू, खींचना यानी। बच्चों के बीच किस वेंडर ने खींची। द राइटर्स अटेंशन, लेखक की अटेंशन, लेखक का ध्यान। मोस्ट, सर्वाधिक। एंड वाई, और क्यों। बच्चों के बीच में किस वेंडर ने या किस विक्रेता ने लेखक का ध्यान सर्वाधिक खींचा और क्यों। आंसर, ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 years, 9 वर्ष की एक छोटी लड़की। अट्रैक्टेड द राइटर, लेखक को प्रभावित किया। 9 वर्ष की एक छोटी लड़की ने लेखक को प्रभावित किया। मोस्ट, सर्वाधिक। बिकॉज, क्योंकि। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक वास्तविक प्रार्थनी थी या प्रार्थना करने वाली थी। शी हैड टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। हर कंडीशन वॉज वेरी पिटिएबल, हर कंडीशन, उसकी स्थिति। वॉज, थी। वेरी पिटिएबल, बहुत ही दयनीय, उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। एक 9 वर्ष की छोटी लड़की ने लेखक को सर्वाधिक आकर्षित किया क्योंकि वह एक वास्तविक प्रार्थना करने वाली या प्रार्थनी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वॉज द ऑथर हाईली इम्प्रेस्ड, लेखक बहुत अधिक प्रभावित क्यों हुआ। बाय द कंडक्ट, आचरण के द्वारा। ऑफ द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के। लेखक छोटी लड़की के आचरण के द्वारा बहुत अधिक प्रभावित क्यों हुआ। आंसर, द ऑथर वॉज, लेखक था। हाईली इम्प्रेस्ड, बहुत अधिक प्रभावित। बाय द सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के द्वारा। एंड डिग्निटी, और गौरव के द्वारा। ऑफ द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के। लेखक छोटी लड़की के आत्मसम्मान और गौरव के द्वारा बहुत अधिक प्रभावित था। द गर्ल वॉज वेरी पुअर, लड़की बहुत गरीब थी। बट यट, लेकिन फिर भी। शी डिड नॉट एक्सेप्ट, उसने स्वीकार नहीं किया। द राइटर्स चैरिटी, लेखक के दान को। एंड रिटर्न इट, और इसको लौटा दिया। लड़की बहुत गरीब थी लेकिन फिर भी उसने लेखक के दान को स्वीकार नहीं किया और इसको लौटा दिया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट फोर्स्ड द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट। व्हाट फोर्स्ड द राइटर, लेखक को किसने बाध्य किया। टू बाई, खरीदने के लिए। द लिटिल गर्ल्स बास्केट, छोटी लड़की की टोकरी। लेखक को छोटी लड़की की टोकरी
खरीदने के लिए किसने बाध्य किया? आंसर, द गर्ल वॉज वेरी पुअर, लड़की बहुत गरीब थी, बट यट, लेकिन फिर भी, शी डिड नॉट एक्सेप्ट, उसने स्वीकार नहीं किया, द राइटर्स चैरिटी, लेखक का दान, एंड रिटर्न इट, और इसको लौटा दिया। लड़की बहुत गरीब थी, लेकिन फिर भी उसने लेखक के दान को प्राप्त नहीं किया और इसको लौटा दिया। दिस बिहेवियर ऑफ द गर्ल, लड़की के इस व्यवहार ने, फोर्स्ड द राइटर, लेखक को बाध्य किया, टू बाई हर बास्केट, उसकी टोकरी खरीदने के लिए। लड़की के इस व्यवहार ने लेखक को उसकी टोकरी खरीदने के लिए बाध्य किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द राइटर थिंक, लेखक क्या सोचता था, अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के बारे में। लेखक भारत के लोगों के बारे में क्या सोचता था। व्हाट पिक्चर डिड ही कैरी बैक, वह कौन सी पिक्चर, कौन सी तस्वीर वापस ले गया। इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश की, एंड द पीपल, और लोगों की, एज ए होल, एक साथ, वह हमारे देश की और लोगों की एक साथ कौन सी तस्वीर अपने मस्तिष्क में वापस ले गया। आंसर, द राइटर थॉट, लेखक सोचता था, दैट द पीपल ऑफ इंडिया, कि भारत के लोग, आर फुल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान से भरे हुए हैं। लेखक सोचता था कि भारत के लोग आत्मसम्मान से भरे हुए हैं, एंड डिग्निटी, और गौरव से भरे हुए हैं। लेखक ने सोचा कि भारत के लोग आत्मसम्मान और गौरव से भरे हुए हैं। दे हैव सेंस ऑफ सिटीजनशिप एंड डिजायर फॉर फ्रीडम, दे हैव सेंस ऑफ सिटीजनशिप, वे नागरिकता की समझ रखते हैं, एंड डिजायर फॉर फ्रीडम, और स्वतंत्रता की भावना रखते हैं। वे नागरिकता की समझ और स्वतंत्रता की भावना रखते हैं। दस ही कैरिड बैक, इस प्रकार वे वापस ले गया, इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, ए नोबल पिक्चर, एक कुलीन तस्वीर, एक ऊंचे दर्जे की तस्वीर, ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश की, एंड द पीपल, और लोगों की, एज ए होल, एक साथ। इस प्रकार वह हमारे देश और लोगों की एक साथ एक कुलीन तस्वीर, एक ऊंचे दर्जे की तस्वीर अपने मस्तिष्क में वापस ले गया। नाउ इट इज द एंड ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो I shall teach you another important topic. Till then, bye.